In this position, it is white to play. Okay. What you have to do, you have to judge the position. It is an endgame position, but not very easy. आप लोग 5 मिनट अच्छे से थिंकिंग कीजिए. थिंक फॉर फाइव आपकी वॉइस मिनट्स क्लियर नहीं आ रही. Pratyush, maybe there is some problem at your end. That's why, but I am writing in chat box also, don't worry about it. So here, guys, what you have to do, it is white to play. And first you tell me whose position is better and why. अभी नहीं बताना है, आप लोग अच्छे से थिंकिंग कीजिए. 5 मिनट के बाद में बताना है थ्रू चैट बॉक्स. ओके. So first tell me it is white to play and whose position is better and why. I am writing the same in chat box also. अभी देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है. आप इमीडिएटली मत बताइए. आप 5 मिनट ले लीजिए. उसके बाद में आप आपका ओपिनियन दीजिए. राइट. टेक योर टाइम गाइस. Okay, I am getting very good response from your end, but still I would ask you, this position is not very easy to judge. तो आप लोग अच्छे से सोचिए. जितना आपका एनर्जी रहेगा, you just remember that, you just imagine that this position has been occurred in the tournament and you are playing with white pieces, guys. So again, I am giving you 2 minutes time, then we'll have some discussion after that.
Okay, Shashwin. Okay, great, Shashwin. Good judgment. Great. Shivansh has also applied a very good theme. Yeah, but see, Shivansh, you have missed some planning for black as well. So just try to consider all the black options also. आप लोग वापस वही गलती हम लोगों से हो रहा है कि we are just trying to play best move for our side and not considering opponent's move. फर्स्ट तो आप अपोनेंट क्या खेल सकता है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए प्लीज, फिर आपका प्लानिंग अच्छा बनेगा. ओके, और कोई लिख रहा है? एनीबडी इज राइटिंग एनीथिंग? ओके, अभी मैं आपको थोड़े से आइडियाज देता हूँ सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट. ओके, अभी देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो जजमेंट लिया है पोजीशन का वो कैसे करना है वो देखिए. ओके, वेरी गुड प्रत्युष, आपने अच्छा मुंह बताया. प्रत्युष ने भी, शिवांश एंड शश्विन, they have also given a good reason. But first see that guys, आपको पोजीशन कैसे जज करना चाहिए. डोंट कैलकुलेट मटेरियल वाइज, एक्टिविटी वाइज आपको पोजीशन देखना है. फर्स्ट रिमेंबर, आई एम राइटिंग द वर्ड इन चैट बॉक्स. देखिए, आई हैव रिटन समथिंग इन चैट बॉक्स, ट्राई टू रीड आउट इन योर माइंड गाइस. ओके, पढ़ लिया आप लोगों ने? तो आपको ये जजमेंट फॉलो करना है. सम पैरामीटर्स, सम थंब रूल्स फॉर जजिंग द पोजीशन. अगर इसमें आप देखोगे कि वाइट एक्सचेंज पढ़ ही नहीं पा रहा, ये मैं ये तो पढ़ ही नहीं पा रहा. अच्छा, ओके, मैं बोलता हूँ, नो प्रॉब्लम. मटेरियल वाइज, मटेरियल मतलब क्या? अभी आप लोगों ने देखा कि वाइट एक्सचेंज अप, बट ये पोजीशन इतना सेफ है क्या कि एक्सचेंज अप है तो हम लोग वाइट करके जीत ही जाएंगे? नो, इट इज नॉट दैट मच ऑफ इजी, बिकॉज सी, black is also having some threats 1 and 2.
These are two assets for black. Okay. Acha, Shivansh has given a good reason. Very good, Shivansh. Okay. Yes, yes, yes. Because see, black is also having counterplay and this pawn is also very dangerous. Okay. तो आप लोगों को पहले तो ये देखना है. First, this rook is active, but what about this rook? अभी first thought is coming to our mind. We have two pawns. He has only, sorry, we have two pawns here. He has one pawn. Let us try to play with pawns and just have a new queen. No, but it's not very easy. और आप सब लोगों ने ये मूव भी मिस किया है कि ये यहाँ से ऐसा बहुत पावरफुल प्रॉब्लम हो सकता है. आप लोग अगर अभी b4 खेलेंगे तो ये सब चीजें आ सकती है रुक से. See guys, after your b4, if you are thinking about rook d1, still black will play rook c8 and his knight, his rook is coming to c2 because this is not possible. This is a mate guys. Okay. तो ये सब चीजें आप लोगों को देखनी चाहिए जब आप लोग किसी भी पोजीशन को जज करते हैं. Okay. और सेकेंडली क्या है कि another one good move is there for black is king h6. He will ask your rook what you are doing here, try and please try to convey what is your plan. Okay. तो इस तरह से आपको ये पोजीशन जज करना चाहिए. इट्स नॉट वेरी इजी एट योर लेवल, इट्स नॉट वेरी इजी, बट एटलीस्ट अगर आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोगों को पोजीशन कैसी देखनी चाहिए तो आप लोग एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ में यू कैन फाइट आउट. ओके. आप लोगों को अभी सबको आगे जाना है, रेटेड प्लेयर बनना है, अच्छा रेटिंग लाना है, अच्छा प्लेयर बनना है, अच्छा चीज को समझ लेना है. रेटिंग वगैरह जाने दो, बट यू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेस. ओके. जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कोई ऐसा ये एम नहीं रखते. फर्स्ट उनका एक ही एम रहता है कि हार्डवर्क करे. आप लोग हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली ये सब बाकी चीजें अपने आप आ जाएगी. जैसे अभी ये रघुनानंदा, निहाल सरीन, रौनक साधवानी, these guys are taking too much efforts. तो आप लोग देख रहे हैं कि yes, Harshadip, congratulations Harshadip, from our camp he has completed I think rating requirements for rapid and blitz, I think so. So very good Harshadip, keep it up. Okay. चलो तो फर्स्ट मूव तो b4 तो नहीं है, बट इसके बारे में आपको क्या लगता है? रुक d1, हाउ इज दिस मूव? आप मुझे चैट बॉक्स में डालिए. अच्छा है कि बैड है? इट इज गुड और बैड, एंड व्हाई इट इज गुड एंड व्हाई इट इज बैड. आई एम गिविंग यू 3 minutes टाइम गाइस. रुक d1, ऐसे इज द रुक d1. देखिए एंड गेम में एक प्रॉब्लम रहता है. हम लोग को ऐसे लगता है कि ये पोजीशन हमारे लिए अच्छा है या अपोनेंट के लिए अच्छा है, बट आप लोग डीप में जाएंगे तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू एसेस इट प्रॉपरली. सो गो डीप एज फार एज पॉसिबल एट योर एंड और फिर बताइए. यस, और केयरफुली देखिए, और केयरफुली देखिए. वेरी गुड आयन, वेरी गुड. ओके रियांश. ओके प्रत्युष.
I guess it's a bad because no word has to go. Do you want the Guys, please keep silence. Use chat box. देखिए हम लोगों को 100% ये करना है, फाइंड आउट करना है गाइस, एंड प्लीज पुट योर ओन नेम गाइस. इट इज गेटिंग confusion for me. Okay, Shivansh, actually 50% your planning is good, but 50% needs to be improved. Last 1 minute to go, guys. And don't think in one direction only. सब जगह से देखिए आप लोग. So what about my answer? नहीं, आपने तो पहले वही भेजा था, वही भेजा है आपने, वो तो वेरिएशन करेक्ट है आपका. लेकिन अगर ब्लैक कुछ दूसरा खेलेगा तो क्या करेंगे आप, वो भी हम लोग को देखना बेटा. Okay, sir. Yeah, Shashwin, you are absolutely right. You are absolutely right. Actually, Rook D1 is a good move, guys. Rook D1 is a good move because see, Knight B2 is looking really very risky. समझो यहाँ पे अगर ये मारेंगे तो इसमें ये मूव आ रहा है Rook D4. Okay. तो after this, I think there would be a huge trouble for black. आप अगर King H6 खेलोगे तो वो Rook G3 खेलेगा और he will keep threatening you. Yes, आयन वो मूव हो सकता है, वो मूव हो सकता है. Okay. तो फर्स्ट आप लोगों के मन में जो आता है ना, मटेरियल खाइए, मटेरियल खाना तो मुश्किल है. ओके, रुक D1 इज गुड, बट हियर थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे. रुक D4 आएगा फॉर एग्जांपल, ब्लैक कैन प्ले दिस मूव आल्सो. रुक H4, रुक H6 फॉर, अभी ये आ सकता है क्योंकि अभी डबल अटैक है B2 एंड ये. अगर आप ये चेक दोगे तो व्हाइट इज हैप्पी टू एक्सचेंज. देखिए अभी इसके बाद में आप समझो यहाँ जाएंगे तो फर्स्ट ये चेक आ जाएगा, तो थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा ब्लैक के लिए. ये पॉन जो है, ये पॉन बहुत फास्ट है इसका. ओके, वापस जाएंगे. हाँ अश्विन, आपको क्या डाउट है जरा पूछिए चैट बॉक्स में बेटा. Sir, after knight into b2, rook d4, फिर rook h6, rook h4, फिर rook h6, फिर rook h6, फिर rook into h6 and rook e5 ऐसे चलेगा. एक्चुअली दैट इज आल्सो पॉसिबल, बट उसमें रुक H6, रुक E5 वो भी पॉसिबल है. एक्चुअली वो भी खेल सकते हैं. Sir, हाँ, एक मिनट ये हम लोग क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में यस आई विल कम टू यू. अब इसमें अगर आप ये खाओगे, इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये हो रहा है, ब्लैक का किंग थोड़ा एक्टिवेट हो रहा है. okay, sir. इतना डिफरेंस, ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस एक्चुअली, बट हियर ब्लैक इज गेटिंग सम एक्टिविटी व्हिच विल मे बी व्हिच विल हेल्प हिम टू मेक अ ड्रॉ एक्चुअली. ओके, टफ है, इट इज टफ, बट व्हाई वी शुड गिव सम चांस टू अपोनेंट, राइट शश्विन? Yes, sir. बताइए आप, यश आपका क्या डाउट है बेटा? After rook d4, not rook f6. यस बताइए.
Black plays king h6, rook g3, then king h5, rook h4, then king takes h4. नहीं रुकेश 4 क्यों खेलेंगे हम लोग अभी अभी नहीं खेलेंगे. I'm just saying that now it's not a threat. Yeah, it's not a threat, but actually here maybe I can play this one. Okay. Now your rook is paralyzed there, and there are so many threats. I have this threat also. Checkmate of rook h4. First of all, I can play this also. Okay, so black has to be very careful, Yash, in this. Okay. Means it is not easy for white also to make or generate checkmate, but still black has to be very careful. Even very strong players or grandmasters are also fumbling here because when our king is in bad position, Yes. it would be very difficult to calculate actually. So always try to avoid this. Guys, please be in mute mode because some noise is coming, which is Yes. so first rook d1, guys. For example, black is playing this king h6. Okay, rook g3. अभी आप लोग को मालूम है कि ये खराब हुए नाइट, तो ब्लैक इज प्लेइंग. कहाँ खेलना है नाइट को जरा चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे 1 मिनट थिंकिंग करके. वेयर वी शुड प्ले दिस नाइट नाउ गाइस बिकॉज ही इज trying to attack it. Take your time and find out black to play where we should play our knight. Last 30 seconds, guys. Please try to submit your. What about my? हाँ सब हम डिस्कस करेंगे. We'll discuss बेटा. Just wait for some seconds. Okay, guys. Let us see.
अभी आप लोगों को क्या करना है कि एज अ ब्लैक समझो, ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचेंगे तो वी हैव टू फाइंड आउट काउंटर प्ले। ओके, काउंटर प्ले मालूम है सबको क्या होता है? व्हाट इज काउंटर प्ले? Yes, काउंटर sir. प्ले या मतलब अपोनेंट आपके ऊपर थ्रेड्स लगा रहा है बट यू शुड नॉट कीप साइलेंस एंड यू शुड आल्सो ट्राई टू मेक सम स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स, दैट इज कॉल्ड काउंटर प्ले, राइट? अभी यहाँ पे आप लोग नाइट यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, ये भी है ये भी है, बट ये तो खराब मूव है, हम लोगों ने देखा रुक D4 आ रहा है और बहुत ज्यादा एक्टिविटी मिल जाएगा, बट नाइट C5 इज अ गुड मूव सो दैट यू कैन ब्रिंग योर नाइट E4। सर गलती से मैंने E5 लिख लिया। हाँ Sir, ओके, I told that move. Knight यस C. यस यस यू हैव टोल्ड एंड दैट इज गुड मूव। बाकी भी बच्चों ने बोला, जिसने भी बोला होगा नाइट C5, सी ये मूव एकदम खराब नहीं 95 वगैरह, बट स्टिल नाइट C5 इज अ डबल पर्पस मूव, यू कैन प्ले नाइट E4, you are attacking this rook and you are making some threats on white king also. And see, first of all, by playing knight C5, knight E4, you are not allowing this rook to get to that H4 square, which is a very dangerous square from black's point of view. Right, guys? So, knight C5. This is also good move actually. Rook F8, but rook F8, sorry, rook C8 में एक problem है, rook F3 आ रहा है सीधा सीधा. Okay, that's why it is not good. So knight C5 is a good. White is playing this, for example. बहुत सारे moves है, but we'll try to see principal moves. Rook G4, King H5. अभी एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि देखो गाइस, ऐसा तो चेस में हो नहीं सकता कि यू विल नॉट एंड अप विद बैड पोजीशन। बैड पोजीशंस तो चेस में आते ही है, कार्लसन के पोजीशंस भी बैड आ जाते हैं, विश्वनाथन आनंद जी के भी आते हैं, प्रज्ञानंदा के भी बैड पोजीशन आ जाते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, आपकी पूछते है ना? आप लोगों को क्या करना है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम यू ट्राई टू क्रिएट टू योर अपोनेंट, नेवर गिव अप, राइट? अभी आपने अटैक किया, ही इज प्लेइंग दिस मूव। नाउ आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे हियर फॉर ब्लैक टू कंटिन्यू दिस पोजीशन? अभी आपको वापस 3-4 मिनट सोचना पड़ेगा, ओके? और जो मैंने आपको पैरामीटर्स बोले उस हिसाब से सोचिए अभी प्लीज। ब्लैक टू प्ले, व्हाट इज द बेस्ट वे टू गो अहेड?
चेसबोर्ड में लगा दे, क्या लगाने हैं? सही पोजीशन चेसबोर्ड में लगा दे। हाँ, लगा के देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको टाइम दे दूंगा, डोंट वरी। बट देखिए गाइस, डोंट सेंड योर मूव वेरी फास्ट, ये कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है। एंड गेम में भी आपको ऐसे पोजीशंस आ जाते, खराब पोजीशंस आएंगे तो हम लोग को सोचना ही पड़ता है। तो आप लोग फर्स्ट तो एक आदत डालिए कि जल्दी से एक्शन ना लें। समझो आपके पास में टाइम है तो आप लोग को थोड़ा धीरे सोच सकते हैं, उससे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। फुल बनना है। हमारी बॉडी में चलो गाइस, सोचिए अच्छे से। बहुत सारे आंसर्स तो आ रहे हैं बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द आंसर विच वी शुड प्ले हियर। हम लोग को मटेरियल जो है देखना है, वो हम लोगों ने बाद में रखा है। हमारा पहले का है एक्टिविटी। ओके, इनिशिएटिव एक्टिविटी, these things are very important for us rather than material. I found a variation. Very good, भेजिए guys. Okay Harshu, we'll discuss. Okay Daksh, you found good mood Daksh, very good. उसका follow up ढूंढिए Daksh, please. So what about mine? What about my move? आप जो अपोनेंट के लिए मूव सोच रहे हो ना बेटा, वो नहीं खेलेगा ना वो। प्रत्युष, अपोनेंट का स्ट्रांग मूव देखिए। राइट दक्ष, यू फाउंड अ ग्रेट प्लान, वेरी गुड, कीप इट अप दक्ष, वेरी गुड। दक्ष, यू फाउंड अ ग्रेट प्लान, वेरी गुड, कीप इट अप। प्रत्युष, आप अपोनेंट का मुंह देखिए अच्छे से। चलो 1 मिनट देता हूँ मैं, और 1 मिनट है आपके पास में, और अच्छा सोचिए गाइस।
Okay guys, let us see now. Let us see. Please keep silence now. अभी जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए आप, सुनिए. अभी देखिए यहाँ पे अगर आप पैसिव डिफेंस करोगे तो मे बी आपका पोजीशन प्रोलॉन्ग हो जाएगा, बट मे बी इन द एंड यू विल गेट डिफिकल्टी. और एंड गेम में क्या हो जाता है कि अगर हम लोग बहुत टाइम तक डिफेंड करते रहेंगे पोजीशन, तो एट सम पॉइंट वी आर लूजिंग पेशेंस एंड even strong players are starting making blunders. Okay, so it is psychological pressure, so it is not yours or mine. हर एक प्लेयर ऐसे मिस्टेक करता है. ओके, बड़े बड़े प्लेयर्स भी करते हैं. अभी पहला मूव तो हमारे मन में जो आ रहा है कि नाइट d6, why to give this pawn. अब नाइट d6 से आपका पॉन बच जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट योर नाइट इज नॉट गेटिंग गुड स्क्वायर एंड सी ही इज अटैकिंग योर नाइट. So anyway, he can win your pawn. Okay. Or one thing white can do, he will start playing like this. Okay. तो और भी प्रेशर बना रहे. तो knight d6 is not important. And secondly, the problem is that आपका जो किंग है बहुत फंसा हुआ है guys because of this. Why you are not thinking about this? किंग जाएगा तो गेम खत्म हो जाता है, ये हम सब लोगों को मालूम है. तो फिर व्हाई वी शुड नॉट पे अटेंशन टू दैट. वी शुड. ओके. इसमें फिर आपको क्या सोचना है कि आप आपके किंग को अगर बाहर ला सकते हैं, आउट ऑफ द केज, आउट ऑफ द बॉक्स, दैट वुड बी गुड. इन स्पाइट यू कैन थिंक अबाउट सैक्रिफाइसिंग दिस पॉन, क्योंकि ये देखो ये 2 पॉन इमीडिएटली क्वीन नहीं हो रहे. बट अगर आपका किंग फ्री हो जाएगा तो एटलीस्ट यू कैन हैव सम ब्रीदिंग स्पेस. Right? So the correct move here is this, knight g5. Okay, इससे आप थ्रेड्स बना सकते हैं अच्छे से. नाइट g5 से क्या क्यों थ्रेड बन रहा है कि आपका किंग फ्री हो रहेगा इस. ओके, अभी ये खाएगा, किंग लाएंगे हम लोग. अभी प्रत्युष जो आपका आइडिया है रुके चिट वाला, वो आप यहाँ पे कर सकते. और आपके पॉन रोल आगे आने में बहुत मदद हो जाएगी, बिकॉज यू आर सेफ विथ योर किंग. अभी white is playing this because rook h8 is also one thread, so he is playing this. King f4. अभी देखिए पोजीशन कैसे चेंज हो गया. अभी आप बोलिए मुझे कि किसका पोजीशन अच्छा है, सोच के बताइए. whose position is better, white or black, and why? Try to think and send me through chat box.
Okay, guys, let us see the position now. देखिए, white is exchangeable, but black has succeeded in activating his pieces. Okay, one mistake or mistake could equal a draw or even a loss for white. अभी white को बहुत careful रहना पड़ेगा because अभी white का king danger में guys. Okay. Yes, you are right. Position is not clear, Shashwin, but still one who has to be careful, that is white. ये पॉन तो आपके A3 B2 पासर तो नहीं है, इसको बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? Just a minute, guys. Just a minute. We'll continue. Just a minute. Okay. So here, अगर आपके व्हाइट रह गए तो आप लोग क्या खेलेंगे? ओके रुद्र, यू हैव गिवन सम मूव्स. ओके, या इट इज स्टिल अनक्लियर. अगर आपके व्हाइट है तो आप क्या खेलेंगे यहाँ पे बताइए मुझे सोच के. विदाउट थिंकिंग डोंट सेंड एनी मूव गाइस. ओके, ट्राई टू गिव सम टाइम एंड हाउ व्हाइट शुड प्ले दिस पोजिशन. नाउ यू डू वन थिंग गाइस. अभी तक का जो नोटेशन हुआ ना उसका आप लोग पहले तो सॉरी, जो जो डायग्राम्स मैं आपको बताता हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रेजेंट पोजीशन का. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पोजीशन गाइस फर्स्ट. ले लिया स्क्रीनशॉट? आई होप एवरीवन हैज टेकन. यस सर, यस सर, यस सर. ओके, वेरी गुड. अभी आपको क्या करना है मैं आपको घर के लिए होमवर्क बताता हूँ. ये पोजीशन स्टार्ट वाला भी जो है ना उसका एक ये ले लीजिए, पहले वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं ये एरोज हटा देता हूँ. सर ये सब कुछ हटा दीजिए. Yes, don't worry. I am removing all this. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर. इसके बाद में और कहाँ पे इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको बताता हूँ. ये तो ठीक है. इसके बाद ये भी पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका आप ले सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. और अभी जो फाइनल पोजीशन है अपना ये है. अभी देखिए दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बट नॉट वेरी इजी पोजीशन टू गेट. अगर व्हाइट का यहाँ से गलती हो गया तो व्हाइट हार भी सकता है यहाँ पे.
तो आप लोग को ऐसे सोचना है कि व्हाट इज द बेस्ट वे हियर फॉर व्हाइट. ओके, आई एम राइटिंग इन चैट बॉक्स गाइस व्हाट यू हैव टू डू. Okay, as a homework, I have written something in chat box. Please try to see that. Okay. और मे बी नेक्स्ट सैटरडे एक्चुअली मॉर्फिक का टूर्नामेंट है, राइट, ऑनलाइन टूर्नामेंट. तो सैटरडे के लिए हम लोग को थोड़ा मुश्किल हो सकता है, Yes, बट अगर पहले सुन लीजिए मेरा व्हाट आई एम सेइंग. बट इफ यू आर कंफर्टेबल ऑन संडे सेम टाइमिंग इवनिंग, we can take, means instead of 10th we can have a class on 11th. Okay, मैं व्हाट्सएप में डालूंगा. अगर सब लोग सुन लीजिए गाइस, प्लीज लिसन टू मी. समझो अगर पॉसिबल नहीं है सबको, देन वी कैन एक्सटेंड आवर वन सैटरडे, बट यू कैन थिंक अबाउट दैट एंड आई विल सेंड व्हाट्सएप मैसेज, देन यू रिप्लाई टू दैट. ओके, चलो, थैंक यू सो मच गाइस. प्लीज कीप योर प्रैक्टिस ऑन. ओके, Okay. Yeah. Bye, sir. बाय बाय, थैंक यू. Sir, thank you, sir. या प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, बहुत अच्छा Bye, पोजीशन है. sir. बाय बाय, बाय बाय गाइस. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय. Thank you, sir. यस बेटा, थैंक यू सो मच. Excuse me, sir. यस यस बेटा. Sir, I was not able to attend the few 30 minutes. Sir, can you please send me the recording? Few. Which one? Which one? Sir, a recording of this class. Okay, okay, okay. Sure, sure. Don't worry. Sir, I am Daksh. Yeah, Daksh. I Okay. can. I know your voice, so no problem. I can just hear. Yes. No problem. Bye, sir. Bye bye. Bye bye.